اس رات دیر تک نشست رہی سیمی اور لڑکیاں تھوڑی دیر تک اس محفل میں شریک رہیں، پھر لڑکیوں کو نیند آنے لگی تو وہ چلی گئیں۔ نواب صاحب، طالوت، میں اور بیگم نواب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ احسان بھی سونے چلا گیا تھا۔ مکان کی تعمیر بہت جلد مکمل ہو جائے گی نواب صاحب، ہم لوگوں کو بھی شادیہ سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ سیمی اور احسان کی شادی کی تاریخ طے کر لی جائے اور تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ میں نے کہا، مکان کب تک تعمیر ہو جائے گا؟ تم نے وہاں ہم سب کا داخلہ ہی بند کر دیا ہے؟ نواب صاحب ہنستے ہوئے بولے، بس اس کا طرز تعمیر انوکھا ہے، شادی کے مزدور کسی اور کے لیے کام بھی نہیں کرتے۔ مکان تعمیر ہو جائے، وہاں ضروری سامان مہیا ہو جائے، تب آپ اسے دیکھ سکیں گے اور ہم خاموشی سے چلے جائیں گے۔ ارے یہ کیوں؟ بس نواب صاحب، شادی کے کچھ اصول انوکھے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں بدل سکتے، حالانکہ بظاہر وہ بے معنی ہیں۔ اچھا، نواب صاحب نے گہری سانس لی۔ بھائی مجھے کیا سوچنا، تم لڑکی اور لڑکے دونوں کے وارث ہو، جو مناسب سمجھو کرو۔ ویسے مکان کب تک مکمل ہو جائے گا؟ 1 ہفتے کے اندر اندر۔ ارے، نواب صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جو مزدور سے تعمیر کر رہے ہیں ان کی تعداد آپ کے تصور سے باہر ہے، اور یہ سن کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ آپ صرف اس کا رنگ و روغن اور نقش و نگار باقی ہیں۔ بات کسی طرح ذہن میں نہیں آ رہی، اب بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اتنے دن میں تو ایک معمولی سا مکان بھی، خواہ وہ کتنے ہی مزدور تعمیر کریں، مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ مکان تو وہ بھی معمولی ہی ہے، بہرصورت مکمل ہو جائے تو آپ خود دیکھ لیں، یوں بھی شادیہ حیرتوں کی سرزمین ہے۔ طالوت نے جواب دیا اور نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ بہرصورت ہماری خواہش ہے نواب صاحب کے 15 دن کے اندر اندر ہم اپنے کاموں سے بھی فارغ ہو جائیں۔ بھائی میں تمہاری کسی معاملے میں دخل انداز نہیں ہوں گا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تم تمہاری زندگی کا ایک جز بن گئے ہو۔ ہم احسان کو اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جائیں گے نواب صاحب، اور بہرحال پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ طالوت نے کہا۔ کافی دیر کی نشست کے بعد یہ محفل برخاست ہوئی۔ ہم احسان کو اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جائیں گے نواب صاحب، اور بہرحال پھر ملاقات ہوتی رہے گی، طالوت نے کہا۔ کافی دیر کی نشست کے بعد یہ محفل برخاست ہوئی۔ درمیان کے دن بہت دلچسپ رہے۔ طالوت کا الٹیمیٹم ان لوگوں کو مل گیا تھا، چنانچہ شادی کی زبردست تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پورے محل میں جگمگاہٹیں رقصاں تھیں، دعوت نامے دور دور تک جاری کر دیے گئے تھے، ایک تاریخ کا تعین بھی ہو گیا تھا۔ طالوت کی شرارتیں عروج پر تھی، کبھی بوا سے چھیڑچھاڑ رہتی تو کبھی لڑکیوں میں جا گھستا۔ اس کے لیے یہ گہما گہمی انوکھی تھی۔ کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا، یار عرب، تمہاری دنیا میں کچھ ہو نہ ہو، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گونا گو ہنگاموں کا مرقع ہے، اور یہاں ہر لمحہ ایک نئی کیفیت سے روشناس کراتا ہے۔ ان کیفیات میں بڑی رومانیت ہوتی ہے۔ زوبی فال کے گرد تعمیر ہونے والی دیوار ایک دن اچانک غائب ہو گئی، اور اس دن طالوت تنہا مجھے لے کر وہاں گیا، اور حسین آبشار کے بائیں سمت ایک چمکدار عمارت دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ چاندی کی طرح چمکتی یہ عمارت قدیم و جدید طرز کا ایک ایسا نمونہ تھی جس کی مثال روئے زمین پر حال ہی ہو۔ کیا خیال ہے عارف، کسی چیز کی کمی تو محسوس نہیں ہوتی؟ طالوت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، میرا خیال ہے کچھ دولت بھی دے دیں تاکہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ یار وہ بہت عظیم انسان ہے، مایوسی کے عالم میں بھی اس نے لڑکی سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سائی نواب صاحب کو بھی محل دکھا دیں گے، یہاں کے لیے بہت سے ملازموں کی ضرورت ہوگی، نواب صاحب ہی ملازم مہیا کریں گے، میرے خیال میں وہ 1-2 دن میں ان کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے خود کو سنبھال کر جواب دیا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے چلے آئے۔ اسی شام نواب صاحب نے بھی طالوت کی دعوت پر محل دیکھا اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ احسان بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں کی جو حالت ہوئی اس کی تفصیل طویل ہے، مجھے خطرہ تھا کہ وہ ذہنی توازن نہ کھو بیٹھیں۔ خود نواب صاحب کا عالیشان محل اس کے سامنے ایک جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔ کیا شادی کے مزدور واپس جا چکے ہیں؟ نواب صاحب نے پاگلوں کی طرح پوچھا۔ آخری آدمی بھی روانہ ہو گیا۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے، ایک خواب کی طرح، نہ جانے یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ہمیں یہاں کے لیے ملازموں کی ضرورت ہے نواب صاحب، اس کا بندوبست آپ ہی کریں گے، میں آپ کو ملازموں کی فہرست دے دوں گا، برائے کرم اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ طالوت نے ان کی بات سنی کر کے کہا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، فی الحال کم سے کم دربانی کے لیے محل سے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ یہی ٹھیک ہے، نواب صاحب گردن ہلاتے ہوئے بولے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ احسان نے اس رات بھی کافی گڑبڑ کی تھی، اس نے رو رو کر طالوت کے اور میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے اس معمولی انسان پر وہ احسانات کیے ہیں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارے احسانوں کا بوجھ اتارنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ بے مشکل تمام ہم اسے سمجھا بجھا کر خاموش کرایا۔ الگ غرض دن تیز سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا۔ اس دن کے لیے طالوت نے راسم کو خاص لباس لانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے علاوہ دلہن کے لیے ملبوسات اور زیورات وغیرہ کی ذمہ داری بھی راسم پر ڈال دی گئی تھی، اور راسم کی پسند بہرحال انتہائی مطمئن کن تھی۔ شادی ہوئی اور ایسی ہوئی کہ اہل جلال آباد حیران رہ گئے۔ ہر رسم اسی انداز میں ہوئی جیسی راج تھی۔ طالوت نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دلہن رخصت ہو کر محل میں آگئی، سب پر سحر کسی کیفیت طاری تھی۔ پھر دلہا دلہن جس وقت خلوت میں گئے تو طالوت نے میری کوہنی مار کر کہا، کیا خیال عارف؟ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ لوگ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لغو جن ہو تم بھی، سیمی کو بہن کہا، اس کے حجلہ عروسی میں گھسو گے؟
अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस देखना था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में उनकी राय क्या है। तालुत ने झींकते हुए कहा, हम दोनों भी थके हुए थे और एक इसलिए कमरे में आराम करने के लिए लेट गए। तालुत अपनी मुसारी पर करवटें बदल रहा था। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। तालुत, मैंने उसे आवाज़ दिया, क्या बात है, सोते क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही यार। वजह वजह कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है यार हम जल्द जल्द यहाँ से दौड़ लें। क्यों, इस जल्दी की वजह? बस यार, यहाँ अपना कोई काम नहीं बना। बन सकता है, रूही और नुसरत भी तो बाकी हैं यार, वो शरीफ लड़कियां हैं, इन्हें जाने दो। और फिर यहाँ अच्छी हंसी मिसाल कायम की है, कोई गड़बड़ ना हो तो बेहतर है। तालुत ने कहा, कहते तो ठीक हो, बहरहाल हम जाना चाहें तो कौन रोक सकता है? हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन इन लोगों से बाकायदा इजाजत लेकर नहीं चलेंगे। हाँ, मैंने कुछ सोचते होगा, फिर क्या ख्याल है? मुझसे बेहतर तो तुम ही सोच सकते हो। तालुत ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और मैं दरहकीकत किसी सोच में गुम हो गया। तालुत ठीक ही कह रहा था, अगर ऐलान करके यहाँ से जाया जाए तो बड़ी लेदे होगी। अचानक और खामोशी से निकल जाना बेहतर होगा। एक बात बताओ, मैंने अचानक पूछा। क्या? चलना कब है? मेरा ख्याल है 2-3 रोज तो रुकना ही पड़ेगा। इन लोगों को ताज़ा ताज़ा खुशियां मिली हैं, हमारे जाने से गम जरूर होगा, इसलिए फौरी गम मुनासिब नहीं है। जरा खुश हो लेने दो। आहिस्ता आहिस्ता इनके कानों में जाने की बात भी डालेंगे, फिर खामोशी से गायब हो जाएंगे। हाँ, मैं तुमसे मुतफिक हूँ, लेकिन जाते वक्त इन्हें अपने बारे में कुछ बताना है। मुनासिब ही होगा, वरना वो शादियां तलाश करेंगे और अपना वक्त ज़ाया करेंगे। ठीक है, मैं फिर एक लाया में मुकम्मल कर लूंगा, मैंने कहा, और तालुत एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो। दूसरे दिन नाश्ते पर नवाब साहब, बेगम नवाब और महल के दूसरे लोग मौजूद थे। सीमी और एहसान के चेहरों की दमक मोहब्बत की कहानियां सुना रही थी। दोनों बहुत खुश थे। नवाब साहब हमारे नजदीक ही बैठे थे, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। नाश्ते के बाद नवाब साहब हमारे साथ महल के एक दूसरे हिस्से में चल पड़े। वो अब भी इस हसीन महल की तारीफ कर रहे थे। अब हमें कब इजाजत मिलेगी नवाब साहब? मैंने कहा, और नवाब साहब चौंक कर रुक गए। और कुछ और नहीं ठहरेंगे सामिया? नवाब साहब गुलगीर लहजे में बोले। आप जानते हैं नवाब साहब, तवील ऐसा गुजर चुका है, ये खुशियां मांद पड़ जाएंगी तुम्हारे जाने से, जिंदगी में एक खला हो जाएगा। जाना तो है नवाब साहब। हाँ, जाना तो है, नवाब साहब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। बहरहाल चंद रोज और, बहुत दिन से रेस का प्रोग्राम नहीं बना नवाब साहब। और मैं तुम्हें बताना भूल गया, तैयारियां हो रही हैं, आज से चौथे रोज रेस है। साल में खास अहमियत रखती है। मुझे याद ही नहीं रहा इन हालात में, लेकिन बहरहाल मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। रेस के अमले के लोग अपने अपने इंतजाम में मसरूफ हैं। चनाचा यूं बात टल गई। एहसान और सीमी बहुत खुश थे। हमें देखकर उनकी आंखों में ममनूनियत के आसार उभर आते थे, लेकिन हमारी नाराजगी के ख्याल से उन्होंने इस सिलसिले में कुछ कहना छोड़ दिया था। मैंने और तालुत ने मिलकर एक प्रोग्राम बना लिया था, इस पर अमल करने के लिए तैयार थे। चनाचा वो दिन आ गया जिसके दूसरे दिन रेस थी। इस रोज हमारे दिलों को भी कुछ अजीब कैफियत थी। दरअसल यहाँ के पुरमोहब्बत माहौल से कुछ उनसियत हो गई थी, लेकिन ज़ाहिर जिंदगी यहाँ महदूद तो नहीं की जा सकती थी। अभी तो एक अजीम दुनिया पड़ी थी, इसमें ना जाने क्या क्या था। दोपहर के खाने पर सब लोग मौजूद थे। इस वक्त मैंने प्रोग्राम के मुताबिक ऐलान किया, हजरात, सीमी और एहसान को ये शादी मुबारक हो। नवाब साहब बेगम नवाब को अपने बच्चों की पुरमुस्तरद जिंदगी की मुबारकबाद। कल रेस है, इसके बाद हम लोगों की रवानगी जरूरी है। हमारे भी बहुत से काम उलझे पड़े हैं, इसलिए अब हम इजाजत तलब करेंगे। लोग खाने से फारिग हो चुके थे, वरना इस ऐलान के बाद शायद ही किसी से खाना खाया जाता। सिमी मुझे देखती रह गई थी। रूही और नुसरत के चेहरे भी उतर गए थे। एहसान का चेहरा फक हो गया था, और नवाब साहब और बेगम नवाब भी शहीदा रह गए थे। अभी मेरा मतलब है, नवाब साहब बुखला गए। अभी तो नहीं, बहरहाल आप लोगों की इजाजत जरूरी है। मेरे मुस्कुराते का बहरहाल वही उलझने पेश आई जो मुतवक्को थी। तो मुश्किल तमाम माहौल की उदासी दूर हो सकी, लेकिन एहसान और सीमी ने थोड़ी देर के बाद ही हमें आ लिया। आदिल भाई, अल्लाह हमें ऐसा दुख तो ना दे, हमारा दिल तो भर जाने दे। सीमी ने कहा, अरे मैंने अपना भाई तुम्हें दे दिया सीमी, और क्या चाहिए? तालुत ने आंखें निकाल कर कहा। एहसान रो पड़ा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगा आदिल और साहिबा, मुझे अभी आपके सहारे की जरूरत है। हो सीमी, इसे समझाओ, ये क्या लड़कियों की तरह रोने लगता है? लेकिन सीमी खुद रो रही थी। इस दिन के माहौल से हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ से बाकायदा रुखसत हो जाना नामुमकिन है। लेकिन दूसरे दिन के लिए प्रोग्राम मुकम्मल था। रात को रास्ते में 2 मखसूस घोड़ों का इंतजाम कर लिया था। इसी रात मैंने नवाब साहब के नाम एक खत लिखा, जिसकी तहरीर कुछ यूं थी, मोहतरम नवाब साहब, हमारी रवानगी आपके लिए हैरान कुन जरूर होगी, लेकिन बाकायदा रुखसत होना हमारे बस की बात नहीं। हम जा रहे हैं, ये सुनकर शायद आपको दुख होगा कि रियासत शादिया का रुए जमीन पर कोई वजूद नहीं है। हम क्या हैं, इसे सीगा राज में ही रहना चाहिए। आप दुनिया के एक एक गोशे को छान मारेंगे, तब भी आपको हमारा सुराग न मिलेगा। लेकिन इससे नतीजा भी नहीं आहाज न कर ले कि हम फरिश्ते थे, हम इसी जहां के गुनाहगार हैं। आप जैसे पुरमोहब्बत लोगों के खलूस के एवज हमने जो कुछ किया, वो आपकी मोहब्बत का बदल नहीं है। खलूस और मोहब्बत की कीमत तो सारे जहां के खजाने भी नहीं है। चनाचा ये बात भूल जाएं कि हमने आपको कुछ दिया है। इंसान एक नेक इंसान है, इसका ख्याल रखें। सिमी एक प्यारी बहन है, इसकी मोहब्बत के सामने सब कुछ हीच है। रूही और नुसरत को अदाब कहते हैं, बता दे कि हम किसी काबिल नहीं थे। बेगम साहबा माँ की हैसियत रखती हैं, इन्हें भी तसल्ली दे दे। आदाब, आपके खादम साइम आदिल। तालुत ने खत सुनकर गर्दन हिला दी, वैसे वो भी किसी कदर मगमूम था। मैंने खत बंद करके एक लिफाफे में रख दिया, फिर हम सो गए। दूसरे दिन रेस की तैयारियां थी। नवाब साहब अस्तबल की निगरानी कर रहे थे। हमारे नए घोड़ों को देखकर चौंक पड़े थे। पहले मैंने इन्हें बताया कि ये घोड़े भी रेस में दौड़ेंगे, मैं और आदिल इन पर सवारी करेंगे। नवाब साहब पसंदीदगी की निगाहों से घोड़ों को देख रहे थे। दिन को 10 बजे मैंने बुआ को बुलाया। लिफाफा ने देते हुए कहा, बुआ, मुमकिन है हमें वापसी पर याद ना रहे, ये लिफाफा शाम को तुम नवाब साहब को दे देना। और मासूम बुआ ने गर्दन हिलाकर लिफाफा रख लिया। रेस कोर्स में जलालाबाद की पूरी हरकत सिमट आई थी, और एहसान और सीमी भी थे, नवाब साहब भी और दूसरे लोग भी।
हम दोनों पूरी तरह तैयार थे। 3 रेसें हो गई, घोड़े अव्वल, दोम और सोम आते रहे। चौथी रेस पर हमारे घोड़े शामिल थे। हम दोनों जाकी के लिबास में ट्रैक पर आ गए और रेस शुरू हो गई। हम घोड़े लेकर चल पड़े, लेकिन जब स्टार्ट पॉइंट से घोड़े छूटे तो हमारे घोड़ों का रुख बदल गया। हम मुखालिफ सिमत चल पड़े। नवाब साहब और दूसरे लोग दूरबीन से हमारे घोड़ों को देख रहे थे, लेकिन हम इन्हें भूल चुके थे। जलालाबाद से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ रहे थे और हमारे जिन साकत थे। घोड़े दौड़ते रहे। इनकी रफ्तार न जाने क्या थी। देखते ही देखते जलालाबाद के आसार निगाहों से गायब हो गए। हमें खतरा था कि नवाब साहब हमारी तलाश कराएंगे, चनाचा हम रुकने का इरादा नहीं रखते थे। फिर हम इतनी दूर निकला है कि दूसरे घोड़े एक दिन में भी फासला तय न कर सके। पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ भूरी चट्टानें बिखरी हुई थी। चारों तरफ भूरी चट्टानें बिखरी हुई थी। एक ऊंची चट्टान जो साइबान की तरह फैली हुई थी के नीचे हमने घोड़े रोक दिए और तालूत घोड़े से नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर मुजमिल सी मुस्कुराहट थी। कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी घोड़े से नीचे उतर आया। बहुत उम्दा। हाँ यार, कब तक इन लोगों पर मुसल्लत रहते? बुआ इन्हें हद दे देंगी, चंद रोज वो परेशान रहेंगे, फिर भूल जाएंगे और हमें भी दिल से सब कुछ निकाल देना चाहिए। अभी तो दुनिया बहुत वसी है, ना जाने कितने ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जो दिल के करीब आएंगे। दुरुस्त कहते हो, मैंने गर्दन हिला दी। बैठो, भूख लग रही है। तालू चट्टान से कमर टिकाकर बैठते हुए बोला। नहीं, भूख तो नहीं लग रही है। बहुत उदास हो। तालुत मुस्कुराया। कुदरती बात है। ओहो छोड़ो, वो लोग मुतमईन है, हम भी मुतमईन हो जाएंगे। अब ये सोचो आइंदा क्या प्रोग्राम है। तुम्हारे 2 प्रोग्राम थे, मैंने उसे याद दिलाया। एक तो वो आजाद रियासतों की तरफ जाने का और दूसरा वो जिसके बारे में तुमने कहा था, क्या नाम लिया था उसका तुमने? फिल्म इंडस्ट्री। हाँ यार, मुझे इसके बारे में तफसील से बताओ। तफसील तो मुझे भी नहीं मालूम, बस एक मसनूई दुनिया है जहाँ की हर बात अनोखी है। गम, खुशी, मोहब्बत, सब कुछ मसनूई। उसे आर्ट का नाम दिया जाता है। अजनबी इसकी चमक दमक से बहुत मुतासिर होते हैं। जदीद नस्ल के नौजवान दिलो जान की आरजू में धड़कते हैं और बड़े अनोखे किरदार मिलते हैं वहाँ। अरे तो फिर देर किस बात की यार? हाँ, एक बात और है, वो भी बता दो, मैंने कहा। यार, यहाँ नवाब जलालुद्दीन के महल में तो हर चीज तबरक होकर रह गई थी। नुसरत और रूही दिल दोनों हाथों में लिए फिर रही थी, मगर हमारे लिए वो शजरे ममनुआ थी। हाँ तालूत, इस जहान में लाखों किरदार बिखरे हुए हैं, हर किस्म के लोग बासानी मिल जाते हैं। फिर ऐसे लोगों का दिल क्यों दुखाएं जो गम नाश ना हो। ठीक है, मुझे तुमसे इत्तेफाक है, तालूत ने जवाब दिया। हम दोनों किसी गहरी सोच में डूब गए। फिर अब क्या प्रोग्राम है? चलेंगे, वहीं चलेंगे, लेकिन कब, किस तरह? मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा मतलब है जहां चाहो चल सकते हो, लेकिन बस सूरत हाल ये है कि वो अभी हम बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि दूर से किसी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। हम चौंक पड़े। वो कोई यार है। हाँ, कार की आवाज है, तालुत ने कहा और खड़ा हो गया। फिर उसने चट्टान पर चढ़कर देखा और फिर एकदम बोल पड़ा। ओ आरिफ, मेरा ख्याल है ठन गई है। 2 घोड़े सवार आपस में उलझ गए हैं। मैं भी चट्टान पर पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ देखकर मैं हैरान रह गया। अभी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही बातें कर रहे थे और वही हमारे सामने आ गई। यकीनन ये कोई फिल्म यूनिट ही था जो शूटिंग पर आया हुआ था। एक बड़ी जीप पर कैमरा नस्ब था और सामने पहाड़ियों के दरमियान 2 घोड़े सवार तलवारबाजी कर रहे थे। इनमें एक स्याह रंग के चुस्त लिबास में था और दूसरा पुलिस की वर्दी में। तालूत में चीख पड़ा, चलें, लेकिन ये लोग कार पर लेकिन ये कार पर जो लोग जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों में बिच बचाव क्यों नहीं कराते? ये शूटिंग हो रही है, मैंने हंसते हुए। क्या मतलब? वो तो तलवारबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब है फिल्म की शूटिंग पर, यानी वही जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये फिल्म रस्ती यहाँ कैसे आ गई? ओहो तालूत, अगर तुम फिल्म देख लेते तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। दरअसल फिल्म में एक कहानी होती है जिसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ वाकयात होते हैं। स्क्रीन पर पेश करने से पहले उनकी शूटिंग होती है, तब उसे मुकम्मल करके पर्दे सीम पर पेश किया जाता है। बात अपनी खोपड़ी से बाहर है। क्या इन लोगों पर तुम्हारे देश का कानून लागू नहीं होता? अगर इनमें से कोई मर जाए? कोई नहीं मरता, मैंने हंसते हुए कहा। अरे क्यों बकवास करते हो? देखो उसका काम तमाम हो गया। तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा और मुझे जोरदार हंसी आ गई। एक किरदार घोड़े से गिर पड़ा था और इस शॉट के साथ ही कैमरा शायद बंद हो गया था। जीप से चंद लोग नीचे उतर आए थे। फिर वो फीते से जमीन नापने लगे। लड़ने वाले एक तरफ खड़े हो गए थे। ला हौला वला कुव्वता, न जाने ये क्या तमाशा हो रहा है। आओ इस तमाशे को करीब से देखें, मैंने कहा, लेकिन इसी वक्त तालूत ने मेरा शाना दबाया और मैं चौंक पड़ा। ओ वो देखो, वो आहिस्ता से बोला उसने, और मैंने देखा जीप से एक लड़की नीचे उतर आई थी। वो भी कॉस्ट्यूम पहने हुई थी। घोड़े से गिरने वाला फिर इसी तरह गिर पड़ा और स्याह लिबास वाला घोड़े पर सवार हो गया। जीप तैयार हो गई, कैमरा स्टार्ट हो गया, लड़की दरमियान में आ गई थी। क्लिप दिया गया और घोड़े सवार ने घोड़ा दौड़ाया। फिर उसने भागते हुए लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया। घोड़ा दौड़ने लगा। लड़की चीख रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। ओहो, गड़बड़ होगी इसकी, ऐसी की तैसी मेरी मौजूदगी में लेकर निकल जाए। इससे कबल कि मैं तलू से कुछ कहता, उसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी।
दूसरे लम्हे वो घोड़े की पुस्त पर था और तीसरे लम्हे घोड़ा तूफानी रफ्तार से स्याह लिबास वाले की तरफ दौड़ने लगा। जीप बदस्तूर दौड़ रही थी, कैमरा अपना काम कर रहा था। मैं अभी जल्दी से चट्टान से नीचे उतर आया और अपने घोड़े पर सवार होकर तालूद के पीछे दौड़ पड़ा। मरवा दिया था इस बेवकूफ ने। तालूद घोड़े सवार के बराबर पहुंच चुका था। फिर उसने घोड़े सवार की कमर में हाथ डाला और दूसरे हाथ से इसने लड़की को पकड़ लिया था। फिर घोड़े सवार को घोड़े से नीचे फेंक दिया गया और मेरा सर चकराने लगा। अगर इसकी एक आध हड्डी अपनी जगह से खिसक गई होगी तो कबड़ा ही हो जाएगा। लड़की अब तालूद के घोड़े पर थी और उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जीप पर शोर होने लगा था। फिर जीप तेज रफ्तार से तालूद की तरफ बढ़ने लगी, जिसने अपना घोड़ा रोक लिया था। मैं भी करीब पहुंच रहा था। बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। यकीनन इन लोगों से उलझना पड़ेगा। लड़की तालूद की गिरफ्त से निकलकर नीचे उतर गई और वो खौफजदा अंदाज में चीख रही थी और तालूद एमगो की तरह एक एक की शक्ल देख रहा था और जीप पर बैठे हुए तमाम लोग उतर पड़े थे। पकड़ लो, जाने ना पाए, मारो मारो, एक फटी हुई आवाज उभरी और दो और तीन चार आदमी तालूद की तरफ दौड़े। रुक जाओ, क्या बदतमीजी है। मैं धड़ा हुआ मेरी तरफ दिखने लगे। कौन हो तुम लोग, ये क्या गड़बड़ थी? याद रखो हमारे पास पिस्तौल है, नीचे उतरने वालों में से एक ने कहा और सचमुच उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैं भी घोड़े से उतर पड़ा था। फिर मैंने तालूद को इशारा किया और उसको इसकी हालत काबिले दी थी। उसके ख्याल में उन सब को इसका एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टे उस पर बिगड़ रहे थे। ये सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ है दोस्तों, को गड़बड़ नहीं है। होशो हवास कायम रखो, वरना अगर राना साहब को गुस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा। मगर ये मिस रोशीला को लेकर भाग रहे थे, एक आदमी ने एहतजाज किया। भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपनी दानिश में उन्होंने उनकी जान बचाई थी। दरअसल राना साहब को फिल्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप लोगों ने देखा उन्होंने घोड़ा रोक लिया था। ओह क्या बकवास है, सारा सीन खराब कर दिया, बूढ़े आदमी ने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा। मालूम होता है तुम लोगों की शामत आ गई है। राना साहब को अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारा सामान अलग छिन जाएगा और बंदा अलग कर दिए जाएंगे। इसलिए तसल्ली से बात सुनो, समझ लो कि क्या मामला है। क्या मामला है? राना साहब कौन है? बूढ़े आदमी ने किसी कदर नरम पड़ते हुए कहा। राना अजीजुद्दीन, ये पूरा इलाका इन्हीं की मलकियत है। अरबपति है, अरबपति। मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। ओहो, दूसरे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर गर्दन हिलाने लगे। मगर किस्सा क्या था साहब? राना साहब की परवरिश एक पहाड़ी इलाके में हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी, इसलिए वो फिल्म की शूटिंग से भी नावाकिफ है। हम लोग इधर से गुजर रहे थे कि राना साहब ने आपकी हिरवन के चीखों की आवाजें सुनी। चनाचा वो समझे कि कोई बदमाश लड़की को वा करके ले जा रहा है। फिर आप सोचिए वो कैसे रुक सकते थे? मैंने कहा और मिस रोशीला हंस पड़ी। मिस रोशीला हंसी तो दूसरे लोग कैसे खामोश रह सकते थे? चनाचा चारों तरफ कह के गूंज उठे। अरे इस बहादुर को तो देखो, इसकी कमर की हड्डी ना टूट गई हो। रोशीला ने कहा। सब लोग इस स्याह पोश के तरफ मतवज्जो हो गए जो अभी तक जमीन पर चित पड़ा था और इसका घोड़ा करीब ही घास तलाश कर रहा था। दो आदमी इस तरफ दौड़ पड़े। सारा टाइम खोटी कर दिया। अरे देखो बाबू, हाँ को चोट तो नहीं आया? शार्ट रह जाएगा यार, बूढ़े आदमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मालूम होता है तुम्हारी शामत ही आ गई। अरे राना साहब बिगड़ गए तो अच्छा ना होगा। पहले तो ये कि तुमने इनकी इजाजत के बगैर इस इलाके में शूटिंग ही क्यों शुरू की? राना साहब तुम्हारे यूनिट को सामान समेत खरीद सकते हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 2-4 करोड़ खर्च का लेना इनके लिए मुश्किल नहीं है। अरे तुम काम काय को बुम मारता सेटरी वाला। बस अब शूटिंग बाकी, अब बाकी शूटिंग कल होएगा। उठाओ टाइम टबाड़ा। एक दरमियानी उम्र के आदमी ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, फिर हमारी तरफ करते हुए बोला। माफ कर दो साहब, सेठ का मगज खराब है। आइए राना साहब हमारे कैंप तक चलिए, हम आपको फिल्म के बारे में बताएंगा। हम इस फिल्म का डायरेक्टर है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। काम का आदमी मालूम होता था। तालुद भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बात उसके समय में अभी भी नहीं आई थी। आइए राना साहब, वाकई बड़ा दिलचस्प हादसा हुआ है। आइए। मिस रोशीला तालूद का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरी बकवास काम कर रही थी और वो लोग तालूद से मरूब हो गए थे और ऐसे लोगों को हमेशा मोटी मुर्गी की तलाश रहती है। फिर हमारे शानदार घोड़े हमारे बयान की तस्दीक कर रहे थे। इस वक्त वो दोनों आदमी वापस आ गए जो शेरदिल और स्यापोश को देखने गए थे। बाबू खान बेहोश हो गया सेठ। अरे उसे उठाकर जीप में डाल दो, वो है भी नाजुक मजाज, डायरेक्टर ने कहा। और फिर हम लोगों की तरफ रुख करके बोला, आप लोग आइए, हम कैंप चलते हैं। मैं भी घोड़े पर ही चलूंगी राना साहब, क्या आपका घोड़ा मेरा वजन संभाल सकता है? रोशीला ने मुस्कुराते हुए तालूद को देखा। इस वक्त इसकी हैसियत एक बेवकूफ मालदार की सी हो गई थी, लेकिन अब तालूद भी फॉर्म में आ गया था। वो लपक कर घोड़े पर सवार हो गया और रोशीला ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। रोशीला तालूद के सीने से पुस्त लगाकर बैठ गई और मैं भी डायरेक्टर को अपने घोड़े पर सवार करा लिया। कैंप में आ जाओ सेठ, आज शूटिंग खत्म, डायरेक्टर ने कहा और सेठ बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। लेकिन जब मिस रोशीला ही काम करने पर रजामंद नहीं थी तो फिर और कौन काम कर सकता था? हमारे घोड़े कैंप की तरफ दौड़ने लगे। तालूद के मजे आ गए थे। अब यकीनी तौर पर नए और दिलचस्प हंगामे जन्म लेने वाले थे। भांत भांत के जानवर मौजूद थे, हर एक अलग-अलग खसूसियत का हामिल, लेकिन रोशीला जिसकी तरफ माइल हो, इसकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? और फिर फिल्म डायरेक्टर को मालूम हो चुका था कि नवाब राना अजीजुद्दीन अरबपति हैं। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 10-20 फिल्मों का नाम सुनकर डायरेक्टर के मुंह में पानी भर आया था। इससे उम्दा पार्टी और कौन सी मिल सकती थी? बस किसी तरह फिल्म बनाने पर राजी हो जाए।
लुत्फ आ जाएगा। इसके लिए इसने रोशीला को फांसने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राना अजीजुद्दीन रोशीला पर मुतवज्जा नजर आ रहे थे। बहरहाल खूब चक्कर चला था। हम दोनों मिस रोशीला और फिल्म डायरेक्टर अब्दुल भाई को लेकर कैंप में आ गए थे। शूटिंग करने वाले दूसरे लोग भी हमारे पीछे चल पड़े थे। हेमो की छोटी सी आबादी में पहुंचकर घोड़े रोक लिए गए और तालुत घोड़े से कूद पड़ा। मिस रोशीला ने भी अपने नाजुक बाजू फैला दिया और तालुत के सहारे उतरना चाहती थी। तालुत ने गर्दन खुजाते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इशारा कर दिया। कोई हर्ष की बात नहीं थी। चनाचा तालुत ने रोशीला की बगलों में हाथ डालकर इन्हें नीचे उतारा और मिस रोशीला ने अपने पूरे जिस्म का वजन तालुत पर डालकर घोड़े की पूंछ से जमीन तक का फासला तय किया। वो चंद लम्हात में अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना लेना चाहती थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब भी घोड़े से नीचे उतर आए थे और राना अजीजुद्दीन, खुदा कसम आज तो आपने कमाल कर डाला। कैसा मजे का बात था। आप ओरिजिनल हीरो लगता पड़ा था। बाबू खान को आपने ऐसा पटक नहीं दिया, साला चित हो गया। हाँ हाँ, क्या याद करेगा, साला कभी विलन बना था। ये सब कुछ होता है, मुझे इसके बारे में ये सब क्या होता है मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने ये कभी नहीं देखा, तालुत ने कहा। अरे जरूर बताएंगा, काय को नहीं बताएंगा। वरी आप देखो जरा, खुदा कसम फिल्म ना देखा तो कुछ ना देखा। आइए राणा साहब आराम करें, थोड़ी देर, सुबह से कई शाट हो गए, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ जरूर आराम करो राणा साहब, थोड़ा देर आराम करो। सेक्रेटरी, राणा साहब ने मुझे आवाज दी। राणा साहब, मैंने तालुत के सामने गर्दन झुका दी। मेरे साथ आओ। राणा साहब ने हुक्म दिया और मिस रोशीला ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। बहरहाल मैं राणा साहब के हुक्म को कैसे टाल सकता था। चनाचा मैं भी उनके साथ ही मिस रोशीला के खूबसूरत खेमे में दाखिल हो गया। मिस रोशीला ने थोड़ी देर के लिए अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर ली थी। अंदर एक क्री सूरत बड़ी भी, जिनकी थोड़ी मुंह चलाते हुए नाक की पुंग से जा लगती थी, गाँव तकिए से टेक लगाए दराज थी। उनके सामने बड़ी सी पटारी रखी हुई थी। हम लोग को देखकर चौंक पड़ी, फिर संभल कर बैठ गई। ये मेरी नानी है, मिस रोशीला ने तारफ कराया। बड़ी भी कड़ी नजरों से हम दोनों को घूर रही थी। और नानी, ये नवाब राना अजीजुद्दीन है, इस इलाके के सबसे बड़े नवाब। अरे तू शूटिंग करने गई थी कि नवाब साहब को बुलाने? ये कहाँ से मिल गए? बड़ी बी ने पोपली आवाज में कहा। नानी, ये बहुत बड़े नवाब है, अरबपति हैं, 10-20 फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं। मिस रोशीला ने कहा। अरबपति वाली बात नानी की समझ में आती ना आती, लेकिन 10-20 फिल्मों की बात समझ में आ गई थी, जिसका मतलब था कि 10-20 लाख रुपए। चनाचा नानी के होठों पर फुसफुसाहट फैल गई। मुस्कुराहट तो हसीन चीज होती है, इस तरह इनके होठों के खुल जाने को फुसफुसाहट ही कहना मुनासिब है। उनका मुंह अंदर से लाल था। अरे जम आओ नवाब साहब, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, नानी ने खड़े होते हुए कहा। और शीला ने इत्मीनान की सांस ली। आप जरा बाहर जाकर कुछ चाय वगैरह का इंतजाम कराएं, नवाब साहब हमारे मेहमान हैं। जरूर जरूर, नानी साहबा ने कहा और फुदकती हुई खेमे से बाहर निकल गई। उनकी चाल बेहद मज़क्का हैज थी। इसकी वजह यह थी कि ऊपरी बदन बहुत लंबा था और टांगे छोटी थी। तशरीफ रखिए नवाब साहब, तो बहुत ही भोले हैं। भला इस दौर में कौन होगा जिसने फिल्म ना देखी हो? मेरे सेक्रेटरी बता चुके हैं, मैंने पूरी जिंदगी पहाड़ों में गुजारी है। बैरूनी उमूर के निगरान मेरे सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत अजीब मालूम हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं आपको फिल्म दिखाऊंगी। इस फिल्म के कुछ प्रिंट और प्रोजेक्टर यहाँ मौजूद हैं। आज रात को इंतजाम करेंगे। आप बहुत बड़े नवाब हैं, वरना मैं आपसे कहती कि फिल्म के हीरो आप बने। अच्छे अच्छों के रंग फीके पड़ जाएंगे। ये हीरो क्या होता है? तालुत ने पूछा। बहुत कुछ होता है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चल सकता है नवाब राना अजीजुद्दीन। मैंने जल्दी से बात लपक ली। रोशीला ने फिर मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि जैसे वो मुझे राना साहब की नानी समझ रही हो, और इसको हेमे में नानी की जरूरत नहीं थी। मैंने भी सोचा क्यों ना तालुत को तफरीह का मौका दिया जाए। चनाचा मैंने से इजाजत तलब की। अगर आप इजाजत दे राना साहब, तो मैं बाहर के इलाके की सैर कर लूं। चाय नहीं पियोगे सेक्रेटरी? तालुत ने घबराए हुए अंदाज में कहा। इनकी चाय बाहर चली जाएगी, वैसे भी आकार नौकर एक साथ चाय पीते भले मालूम नहीं होते। ठीक है, तुम बाहर की सैर करो, रोशीला ने कहा और मैं सादतमंदी से उठकर बाहर चला आया। नवाब जलालुद्दीन के जलालाबाद में बड़े सुथरे और पकीजा माहौल में जिंदगी बसर की थी और खासा वक्त वहां गुजारा था। इसके बाद ये तब्दीली काफी दिलकश थी। फिर तालुत एक और अनोखे माहौल से रुशनास होने जा रहा था, इसलिए मैंने उसे पूरा पूरा मौका दिया और उसे और रशीला को हेमे में तनहा छोड़ दिया। जाहिर है तालुत को फिलहाल कोई खतरा तो है नहीं था, फिर उसे खतरा हो भी क्या सकता था। बाहर फिल्म डायरेक्टर मेरी ताक में था। चनाचे उसने फौरन मेरी तरफ छलांग लगाई। हो आओ जी सेक्रेटरी साहब, खुदा कसम हमारे साथ चाय पियो, हमारे को बहुत खुशी होगा। सेठ रुई वाला वापस आ गया। मैंने उसके साथ इसके हिमी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे आ गया साला काली पीली मुंह मारता। अरे मिस रसीला ही शूटिंग को तैयार नहीं होएगा तो फिर कोई क्या कर लेगा? ये तुम बोलो भाई, क्या हमारे को दुपट्टा उड़ाकर अगवा कराएगा? ही। डायरेक्टर हंसते हुए बोला। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गर्दन हिलाई और सामने दिखने लगा, जहां सेठ रुई वाला कुछ लोगों पर बिगड़ रहा था। उसका मूड बहुत हराम मालूम हो रहा था। आओ यार, मैं चाय का बोलता हूँ, आओ। डायरेक्टर मुझे अपने हेमे में ले गया, फिर एक कुर्सी पर बिठाकर बाहर निकल गया। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मुझे अपना माजी याद नहीं आता था, हालांकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन तालुत की हंगामा हेजियों में सब कुछ भूल गया और कोई बात याद रखना हिमाकत थी। खासी दिलचस्प जिंदगी गुजर रही थी। देखना यह था कि इस नए माहौल में कौन कौन सी दिलचस्पियां पोशीदा हैं। डायरेक्टर अंदर दाखिल हो गया और मेरे सामने फोल्डिंग स्टॉल
کھول کر بیٹھتے ہوئے بولا، اپن کو عبدل بھائی بولتا، سیکرٹری صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ گولر بھائی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہے کیا بولا؟ ڈائریکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے میرا نام تسلیم کر لیا تھا۔ چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد پھر وہ بولا، ایک گولر بھائی تمہارا سیٹ؟ میں بولا، رانا صاحب بہت گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، شکل صورت سے تو تم دونوں خدا قسم ہیرو لگتا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس والا ہیرو، پن تم بہت شاندار لوگ ہے، ہمارے کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوا۔ شکریہ عبدل بھائی۔ ارے مگر یہ ارے سکریہ وکریہ کا کیا بات ہے، ہم تو تمہارا مخلص ہے، پن تمہارا سیٹ کیا کرتا پڑا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، میں بولتا ہوں رانا صاحب کا کیا کاروبار ہے؟ اسے کاروبار کی ضرورت کیا ہے عبدل بھائی؟ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کسی معمولی سی تفریح پر 10-20 لاکھ روپے خرچ کر دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہو عبدل بھائی کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی ہنسی نکل گئی، اور پھر وہ لہجتے ہوئے لہجے میں بولا، ارے تو یار اپنا سیٹ، میرا مطلب ہے کہ رانا صاحب کو بولو فلم بنائے، خدا کا قسم بڑا آمدنی ہوتا اور شہرت الگ، ہمارے ساتھ چلو، رانا آرٹ پیلس کے نام سے فلم کمپنی کھول دو، ہمارا خدمت حاضر ہے، ہم نے پورا ڈزن فلم ڈائریکٹ کیا ہے، سب کا سب ہٹ گیا، خدا قسم تمہارا دعا سے ہمارا بہت نام ہے۔ میں رانا صاحب سے بات کروں گا، بشرطے کہ انہیں تمہارا ماحول پسند آ جائے، یہ روشیلا سے کہو رانا صاحب کو مائل کرے، بس کام بن جائے گا۔ سب کا کام بنے گا یار، بس تم دیکھتے رہنا، پن تمہارے کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں تیار ہوں، مگر تمہارا سیٹ گڑبڑ نہ کر دے، وہ رانا صاحب سے ہار کھا رہا ہے، اگر اس نے رانا صاحب کو ناراض کر دے تو بات بگڑ جائے گی۔ ارے صرف کل کا بات اور ہے، اپن سیٹ کا دبل نہیں ہے، کل سارا شوٹنگ کر لے گا، پھر ادھر سے چلے گا۔ ویسے ہم سیٹ کو سمجھا دے گا، تم فکر مت کرو، عبدل بھائی نے کہا۔ اسی پر ڈبل چائے آ گئی، ایک تو مس روشیلا نے بھجوائی تھی، دوسری عبدل بھائی نے منگوائی تھی۔ چنانچہ ہم نے ڈبل چائے پی لی، اور چائے کے ساتھ عبدل بھائی میرا بھیجا تناول فرماتے رہے۔ انہوں نے مجھے فلم بنانے کے لیے تیار کر کے ہی چھوڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد عبدل بھائی سے جان چھڑا سکا اور مس روشیلا کے ہیمے کی طرف چل پڑا۔ روشیلا تالوت اندر موجود تھے۔ میں آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازے پر رک کر اجازت نامہ طلب کیا۔ آ جاؤ سیکرٹری، اندر آ جاؤ، تالوت نے جلدی سے کہا، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ تالوت کے چہرے پر چھپے چھپے تاثرات تھے، اس کی وجہ مجھے فوراً معلوم ہو گئی۔ ہاں، میں نے گہری سانس لی، گویا روشیلا تالوت کو فلم بنانے پر راضی کر چکی ہے۔ کیا پروگرام ہے باس؟ میں نے تالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ مس روشیلا بہت اچھی دوست ہے سیکرٹری، ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ خادم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، البتہ شاید سیٹ روئی والا اسے پسند نہ کرے۔ وہ کون ہوتا ہے پسند ناپسند کرنے والا؟ اس کی کیا مجال ہے، رانا صاحب میرے مہمان ہیں۔ روشیلا نے دہل دیا۔ تب ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ سیکرٹری میرے بچپن کے دوست بھی ہیں مس روشیلا، اس لیے میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ سیکرٹری میرے بچپن کے دوست ہیں مس روشیلا، اس لیے میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ او، یہ تو بہت اچھی بات ہے سیکرٹری صاحب۔ روشیلا کا لہجہ بدل گیا۔ ویسے آپ کے رانا صاحب بہت عمدہ انسان ہیں، میں نے دل و جان سے پسند کرنے لگی ہوں۔ دل سے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں دل سے، روشیلا نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں گڑبڑ آدمی ہوں اور مجھے سنبھالنا ضروری ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال اس مسئلے پر رانا صاحب سے گفتگو کرنا بھی ضروری تھا۔ ویسے یہ بات تو ہمارے پروگرام میں شامل تھی کہ اس ماحول کو اندر سے دیکھا جائے۔ رانا عزیز الدین روشیلا کے منظور نظر تھے، اور روشیلا کی نظر سب کو منظور تھی، اس لیے سیٹ روئی والا بھی نرم ہو گئے اور فوری طور پر ہمارے لیے ایک خیمہ خالی کرا دیا گیا۔ خیمے کے مکینوں کو دوسرے کے ساتھ کر دیا گیا۔ بہرحال ہم اس پورے یونٹ کی نگاہ میں تھے، ہمارے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ ابھی تک مس روشیلا نے تالوت کو نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مجھے اس سے تنہائی میں گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن مغرب سے کچھ دیر پہلے مجھے یہ موقع مل گیا۔ اس وقت مس روشیلا اپنی نانی سے کسی مسئلے پر گفتگو کرنے چلی گئی تھی۔ میں اور تالوت اپنے خیمے میں آ گئے۔ اندر آتے ہی تالوت ہنس پڑا تھا۔ یار عارف، بڑی عمدہ جگہ ہے، مزہ آ گیا۔ ہاں بھائی، تیری قسمت میں مزے ہیں، مزے کر۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مزے تم بھی کر سکتے ہو، دوسری لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ وہ لڑکیاں ہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر لڑکی تو یہ روشیلا بھی نہیں ہے، لیکن اس ویرانے میں غنیمت ہے یار، کیوں نہ باقاعدگی سے اس ماحول کا پوری طرح جائزہ لیں، مجھے تو اس کی زندگی بہت دلچسپ معلوم ہوئی ہے۔ تالوت، میں نے سزنش کے انداز میں کہا، میری ہدایت یاد ہے؟ یاد ہے، ایمان سے یاد ہے، تم فکر مت کرو، اب میں کسی کے پھندے میں نہیں پھنسوں گا۔ وقتی تفریح میں کیا حرج ہے؟ ہاں، وقتی تفریح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مارا گویا تمہاری طرف سے تھوڑے عرصے کے لیے اس ماحول میں رہنے کی اجازت ہے؟ تالوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ تمہارے پروگرام میں شامل تھا۔ زندہ باد، تالوت خوشی سے اچھلتے بولا۔ اس نے کیا گفتگو کی؟ یار چکر میں لانے کا فن بخوبی جانتی ہے، ایسے سے جال ڈالے ہیں، اگر تمہاری ہدایات اپنا تجربہ شامل نہ ہوتا تو میں تو خود کو زندگی بھر کے لیے اس کی غلامی میں پیش کر دیتا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بس وہ 3-4 ہزار جہاں سے میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے، اس سے قبل اپنی زندگی میں گڑا محسوس کرتی رہی تھی، جس میں اچانک مٹی بھر گئی ہے، اور وہ میرے بغیر زندگی گزارنے کو مر جانے پر ترجیح دے گی۔
اسے میں دعوت دی کہ میں اسے قتل کر دوں یا پھر اپنی حسین صورت اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ کروں۔ خوب خوب، یہ باتیں تو زبانی یاد ہوتی ہیں کیونکہ ہر فلم میں وہ دہرائی جاتی ہیں، اور کچھ بتاؤ، اور کچھ سے کیا مراد ہے؟ کوئی عملی ثبوت بھی پیش کیا؟ عملی ثبوت میرا مطلب ہے؟ طالوت گھبرا کر بولا۔ خیر پریشان مت ہو، میں خود بتا دوں۔ اس سے کہو کس پروف لپسٹک استعمال کیا کرے، ورنہ مقابل کے رخساروں ہونٹوں کے نشان اس کے راز تشتز بام کر دیتے ہیں۔ ارے توبہ توبہ، طالوت نے منہ پیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں طالوت، یہ مقام توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی یہی ہے۔